Hello, I'm Ritesh and welcome to next part of our chapter Chemical Kinetics. The topic for today is temperature dependence of the rate of reaction. That is how does temperature affect rate of reaction. Now let us take some example. If you try to dissolve sugar in cold water, it will take more time compared to that same sugar dissolved in cold water. Means if due to change in temperature, dissolution of sugar is faster in case of hot water, right? So at high temperature reaction occurs faster. That's why rate of reaction increases with increase in temperature. Now take an example of N2O5. N2O5 decomposes into N2O4 plus O2. This reaction, the half-life, T half means half-life. Half-life for this reaction is 12 minutes at 50 degree. It's at 50 degree it's 12 minutes, but at 25 degree it will take 5 hours. At 0 degree it will take 10 days. Means reaction is same, but on different temperature rate of reaction got differ. Like at room temperature this reaction is take 5 hours to complete its half of its life. At 0 degree it will take 10 days, and at 50 degree it will take only 12 minutes to complete this reaction, to decompose completely N2O5. Another example is during titration. Titration is one of our practical which will help in class 12. It's very important practical. It will carry 8 marks, right? During titration, KMnO4 and oxalic acid, that COOH whole twice 2S2 is oxalic acid. When we dissolve KMnO4 with oxalic acid, then it gets decolorized faster at high temperature, because it means at high temperature end point occurs faster. Okay. Now next is, with increase in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly double. Practically we observed that every increase in 10 degree or every rise in 10 degree, the rate of reaction will double. Now temperature dependence of rate of reaction explained by Arrhenius. The explanation by Arrhenius we will discuss it on next video. But the explanation is K is equal to A into e to the power minus EA by RT. That is our Arrhenius expression to explain temperature dependence of rate of reaction. Here A is Arrhenius factor, R is gas constant, EA is activation energy, K is rate constant, and that is the value of, not K, that is the value of our gas constant. 8 point, that is the value of our gas constant. T is temperature. तो ये रिएक्शन है जिससे कि हम ये देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर. बट यहां तक पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका जानना हमें बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेट्स स्टार्ट विद थ्रेशोल्ड एनर्जी. व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी? Threshold energy is the minimum energy which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective. तो हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी. उस कोलिजन थ्योरी में क्या पढ़ना होगा कि अगर दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन दोनों के बीच का कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, राइट? So threshold energy is the minimum energy which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective.
इसे हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को ताकि उनके बीच में रिएक्शन हो सके। दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन हो, इसके लिए जो रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को लेते हैं और कमरे में अपने रूम टेम्परेचर पे उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो क्या वो वाटर बना देंगे? Is it possible? No, it is not possible. Why it is not possible? Because at room temperature, at room temperature पे वो एनर्जी उसके पास नहीं है। The required energy to take place, they do not have. But if we pass some electrical arc or electrical energy in it, reaction will take place. इसका मतलब क्या है कि H2 और O2 को रिएक्ट कराने के लिए मुझे एक एक्टिवेशन लेवल तक जाना था, एक एनर्जी तक जाना था। उस एनर्जी तक जाने के बाद ही वो रिएक्टेंट्स मेरे रिएक्ट करेंगे। दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो ये मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी था। सेकेंड इज एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी? The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy become equal to threshold energy. Means reactant को अब एनर्जी चाहिए। भाई क्या है, कोई भी दो रिएक्टेंट है, उनको रिएक्ट करने के लिए जरूरी क्या है कि उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर अगर होगी तो उनका रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जरूरी तो नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी उन रिएक्टेंट्स के पास हो, तो उस एनर्जी तक पहुंचाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे। चलिए तो बात करते हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब इस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाएगा तो वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन उस रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाने के बाद ही रिएक्शन होगा। तो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is supplied to reactant so that their energy become equal to or greater than threshold energy. That is activation energy. Means जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं ताकि रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए ताकि वो रिएक्शन हो पाए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इन दिस मॉड्यूल इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, जैसा कि हमने ढेर सारे एग्जांपल्स देखे। एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर में शुगर का सेम अमाउंट हम एक साथ रखते हैं तो क्या होता है कि हॉट वाटर वाला शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, कोल्ड वाटर वाला टाइम टेकन प्रोसेस है। क्यों टाइम टेकन प्रोसेस है? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो गया। सेकेंड थिंग, decomposition of N2O2 in N2O4 plus O2. It will take 12 minutes to complete its half-life. At 50 degree, it will take 5 hours to complete its rate of half-life at 25 degree. It will take 10 days to complete its half-life at 0 degree. दूसरा मैंने बताया KMnO4 का टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो हमारे क्लास 12 का है, ये 8 मार्क्स का है। दो टाइट्रेशन हमें पढ़ना है KMnO4 के, ऑक्सैलिक एसिड के साथ और मोहर सॉल्ट के साथ। ये दो टाइट्रेशन 8 मार्क्स देंगे प्रैक्टिकल के। इसमें क्या होता है कि हम KMnO4 को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सैलिक एसिड से और उन लगातार जब तक रिएक्ट कराते जाते हैं तब तक वो क्या होता है कि वो कलर उसका KMnO4 का डिसअपियर होता जाता है। ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ड्रॉप करके हम KMnO4 शेक करते हैं और वो KMnO4 का कलर डिसअपियर हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब KMnO4 का कलर डिसअपियर होना बंद हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। तो ये रिएक्शन अगर मैं जल्दी चाहता हूं कि ये जल्दी मेरा एंड पॉइंट आ जाए तो मुझे क्या करना होगा, इस सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन है मेरा ऑक्सैलिक एसिड को, उसे थोड़ा सा टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हट करके फिर KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होता है, रिएक्शन फास्टर हो जाता है और मेरा एंड पॉइंट ऑकर्स फास्टर।
राइट। थर्ड थिंग इज एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि 10 डिग्री अगर हम राइज कर देते हैं टेम्परेचर किसी रिएक्शन का तो उसका रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। इसके बाद हमने ये आर्हेनियस की बात की। आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था K इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। इस इक्वेशन से ये प्रूव होता है कि कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जरूरी था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी आखिर है क्या। तो इससे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए होता है किस चीज के लिए, रिएक्शन को रिक्वायर्ड होता है ताकि उनके बीच दो रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन हो सके। इसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में थ्रेशोल्ड एनर्जी हो पहले से। तो हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए और रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एग्जांपल है NO और O2 जब रिएक्ट होकर NO2 बनाता है तो इट इज अ फास्टर रिएक्शन बिकॉज लो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज फास्टर रिएक्शन। अगेन 2CO plus O2 gives 2CO2. Here is carbon monoxide. When react with oxygen, it gives carbon dioxide. 2 mole of carbon monoxide react with oxygen to gives 2 mole of carbon dioxide. This reaction is very slow reaction because its activation energy is very high. Thank you for very much for today. Next video में हम पढ़ेंगे कि collision theory क्या होता है और इस Arrhenius equation के डिटेल्स को। Thank you very much.